much time. I want to introduce to you a fabulous TEDx speaker. He's an intervention cardiologist, and he practices the Raja Yoga method of meditation for years together and works with the Brahma Kumaris. So can we have the audiovisual introduction of Dr. Mohit Dayal Gupta. Dr. Mohit Gupta is a renowned TEDx speaker and an intervention cardiologist and is currently working as a director professor of cardiology in GB Pant Hospital, New Delhi. He is also the cardiologist in Parliament Health Annex for honorable members of the Parliament. During his medical career, Dr. Gupta has a unique distinction of getting more than 18 gold medals and 5 silver medals. Dr. Mohit Gupta has been nominated as Fellow of the American College of Cardiology, the European Society of Cardiology, the Cardiological Society of India and the Fellow of Royal College of Physicians, Edinburgh. Dr. Mohit Gupta is the principal investigator of many landmark research trials being conducted globally in the field of cardiology, investigating the role of genes in causing hypertension, heart attacks in young population, impact of COVID-19 on heart health, etc. Dr. Gupta is using artificial intelligence in conducting research and has also been instrumental in initiating research on investigating the adjunctive role of meditation in coronary heart disease. He has spoken in Niti Aayog, in Bharat Mandapam with the President of India, S.M.T. Draupadi Murmu. For his distinguished research in the field of cardiology, Dr. Gupta has received a number of national and state-level awards, including the prestigious National Best Innovation Award in Cardiology. He was the brain behind the famous preventive cardiology app, Dadkin, the lifeline that was designed for employees of IOCL. Dr. Gupta was recently invited by TEDx to speak on creating a conscious future. He is a renowned motivational speaker with numerous symposia and sessions to his credit in institutions and universities. He perfectly blends ancient wisdom with contemporary thinking and amalgamates science and spirituality in his sessions. He has been associated with Brahma Kumaris World Spiritual University from his childhood and practices Raja Yoga meditation daily. Dr. Gupta practices Raja Yoga meditation daily and has authored many articles and opinion columns in newspapers and has appeared in various TV shows. Thank you. I was introduced a few minutes ago to Dr. Gupta and I was told he was a fine and a superhuman being. So can I ask past President Satyajit Sahai to please escort Dr. Gupta on the dais. Hello. Yeah. Very good afternoon to all of you and Om Shanti. Very good afternoon, please. दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि कागज की कश्ती थी और नदी का किनारा था। कागज की कश्ती थी और नदी का किनारा था। खेलने की मस्ती थी और दिल ये आवारा था। खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, वो नादान बचपन ही बहुत प्यारा था। दोस्तों, सवेरे से लेकर शाम तक हम लोग भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं।
लेकिन एक सुकून की तलाश में हम लोगों ने बहुत बेचैनियां पाल ली है। और आज मैं आपको अगले 30-40 मिनट्स के अंदर आई एम गोइंग टू टेक यू ऑन अ वेरी यूनिक एंड अ पावरफुल जर्नी। और दोस्तों, मैं आपको कोई भाषण नहीं देने आया, कोई पॉइंट्स नहीं बताने आया, लेकिन आज मैं आपको अपनी ही जीवन की यात्रा आपके सामने रखने आया हूं। कैसा लगेगा आपको सुनकर यदि आपको यह पता लगे कि जो डॉक्टर आपसे बात कर रहा है उसका राइट साइड ऑफ ब्रेन निकाला जा चुका है? कैसा लगेगा आपको सुनकर दोस्तों, यदि आपको यह पता लगे कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो अपनी 80% हियरिंग खो चुका है, केवल 20% हियरिंग से काम करता है पिछले 25 वर्षों से? और कैसा लगेगा आपको सुनकर दोस्तों, यदि आपको यह पता लगे कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है उसके स्पाइन के अंदर 4 स्क्रूज ग्रिल्ड हैं, उसको खड़े होने में, चलने में आज भी और अभी भी दिक्कत होती है, फिर भी वो अपनी दिनचर्या का आरंभ रोज 3:30 बजे करता है, रोज 16 से 20 केसेस ऑपरेट करता है, ग्लोबली ट्रैवल करता है। और दोस्तों, ये है योग, संकल्पों और माइंड पावर की शक्ति। दोस्तों, आज मैं आपको इसी शक्ति के बारे में, इसी माइंड पावर के बारे में दोस्तों बताना। कैन आई हैव दिस स्लाइड व्हिच आर फंक्शनिंग? स्लाइड चेंजर प्लीज। या, I need to do it myself. I need to do it myself, please. Yeah. Yes? Can I have it? It will be convenient for you guys. Yeah. यही करो ना। दोस्तों, ये यात्रा मेरी आरंभ हुई थी आज से 50 वर्ष पहले। आप ही की तरह मैंने भी अपना जीवन आरंभ किया था, एक छोटे से बच्चे की तरह, एक यंग किड की तरह। दोस्तों, मन के अंदर खुशी थी, मन के अंदर आनंद था। प्लीज कैन यू कम हियर? Or you can give me a laptop here, that will be fine. आप ठीक करके ले आइए। तो वो समय था, बचपन का टाइम था, जिनके उत्साह था, प्योरिटी थी, इनोसेंस थी, हैप्पीनेस थी। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया कि मेरे जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। दोस्तों, मुझे जिंदगी में बताया गया कि जिंदगी के अंदर भागना, जिंदगी के अंदर रेस की तरह दौड़ना, यही हमारी जिंदगी का भी है, यही हमारी जिंदगी का देह है। और दोस्तों, मैं भी जिंदगी के अंदर चल रहा था, मैं भी जिंदगी के अंदर जा रहा था। Where do I have to point it? Okay. लेकिन एक दिन दोस्तों ऐसा मेरी जिंदगी का आया जिसने मेरे जीवन को सदा सदा के लिए बदल दिया। 1998 में मैंने कार्डियोलॉजी की अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की, डॉक्टर बना, बहुत खुश था। मेरे अंकल ने कहा कि बेटा डॉक्टर बन गए हो, आगे क्या करोगे? और मैंने अगले दिन रेस में दोस्तों फिर दौड़ना आरंभ कर दिया। 2001 में एमडी मेडिसिन कंप्लीट किया, जॉन हॉपकिंस गया, वहाँ पर अपनी पढ़ाई करी। लेकिन दोस्तों मन नहीं लगता था, कार्डियोलॉजी पढ़नी थी और भारतवर्ष में वन ऑफ द यंगेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बना दोस्तों। और भागते भागते दौड़ते दोस्तों अपने जीवन में सब कुछ मैंने कमाया, एवरीथिंग आई वांटेड, प्रोफेशनली, पर्सनली आई हैड। लेकिन एक दिन जिसने मेरे जीवन को सदा के लिए बदल दिया, और वो मेरे जीवन की दोस्तों पहली कहानी थी। 20 मार्च 2003 का वो दिन दोस्तों, शाम को 5:30 बजे का समय, मैं अपने हॉस्पिटल से ऑपरेट करके 1.5 दिन बाद घर आया था। मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, फादर फिजिशियन गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने, बहुत सीवियर हेडेक था, उन्होंने कहा कि बेटा कुछ खाना खाओगे? मैंने कहा मुझे भूख नहीं है, बहुत सीवियर हेडेक है, मैं रेस्ट करना चाहूँगा। और दोस्तों मैं 2 घंटे बाद उठा, मेरे मदर ने मुझे हाई आइसक्रीम दी
और 7:30 बजे मैंने राइट हाथ में अपना आइसक्रीम का कप लिया, मात्र 15 सेकंड के अंदर अपने घर की जमीन पर मैं कोलैप्स कर गया दोस्तों। मैसिव सीजर्स मुझे हो रहे थे, अनकंट्रोलेबल थे। मुझे इमीडिएटली गाड़ी में डाला, एम्बुलेंस में डालकर इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर गए। पूरी रात डॉक्टर्स ने मेरे ऊपर काम किया और नेक्स्ट डे जब मैं आईसीयू में मुझे होश आया तो मेरे राइट ब्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा इन्फेक्टिव मास था जिसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के नाम से दोस्तों डायग्नोस किया गया। 19 मेडिसिन उस समय पूरे विश्व में अवेलेबल थी दोस्तों, उनमें से 18 के लिए मैं रेजिस्टेंट था। केवल एक इंजेक्शन अमाइकासिन मेरे ऊपर काम करता था। मेरा सर फटने को होता था दोस्तों। मेरी दिनचर्या का आरंभ सवेरे 9 गोलियों के साथ होता था और दिनचर्या का एंड अगेन 9 गोलियों के साथ होता था। एक एक मिलीमीटर पर आकर एनेस्थेटिक मुझे हाथ में इंजेक्शन लगाता था, जिससे मेरी हियरिंग को भी मुझसे दोस्तों छीन लिया। उस दिन आईसीयू में बैठे बैठे अनेकों अनेक संकल्प मेरे मन में दोस्तों आ रहे थे और मैं यही सोच रहा था कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ क्यों है, व्हाई दिस हैज हैपेंड। और मुस्कुराते हुए नेक्स्ट डे जब मैं आईसीयू में था, मेरे मन में था कहीं ना कहीं इस भागती दौड़ती जिंदगी में मैंने ही अपनी लाइफ को किसी लेवल पर दोस्तों कॉम्प्लिकेट कर लिया है। जीवन के अंदर जो संयम है, जीवन के अंदर जो बैलेंस है, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया है। कहीं ना कहीं हमने अपने आप को किसी ना किसी लेवल पर दोस्तों प्रोग्राम्ड डिवाइसेस बना लिया है। मुझे लगता था कि जीवन के अंदर जो वर्क और लाइफ बैलेंस है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, जीवन के अंदर जो वर्क और लाइफ बैलेंस है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया है। और मुझे लग रहा था कि परमात्मा ने हमारी लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई किया है, बहुत इजी बनाया है, लेकिन हमने ही अपनी लाइफ को उलझा लिया है और कॉम्प्लिमेट कर लिया है। मैंने अपनी मदर को मुस्कुराते हुए बोला कि अब जलेबी सी उलझी चुकी है जिंदगी, अब जलेबी सी उलझी चुकी है जिंदगी, तो क्यों नहीं जिंदगी में मिठास डाली जाए, जिंदगी में चाशनी डाली जाए। और उस दिन दोस्तों मैंने अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया दोस्तों, चेंज कर दिया। मैडम कैन यू प्लीज सेंड अनदर वन प्लीज, दिस माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। दोस्तों उस दिन मैंने अपनी लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और ये दोस्तों मेरे जीवन की पहली कहानी थी। उस दिन पहली बात जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी और पहला मैसेज जो मैं आज आप लोगों को सबको देना चाहूंगा, कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, 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 नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक शब्द को जो मैंने अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए डिलीट किया दोस्तों, और वो शब्द जो मेरी लाइफ में हमेशा बन गया था मेरे साथ ही, वो था बिजी हूं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और अपनी लाइफ से इस बिजी शब्द को दोस्तों मैंने हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया और इस बिजी शब्द को अपने लाइफ से अपनाकर एक और सुंदर शब्द को अपने जीवन में अपनाया। और आज सबको मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे साथ साथ सब लोग बोलेंगे आज के बाद, बोलिए, सभी को प्यार से बोलना है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जो बातें आज आप सुनने जा रहे हैं आपने जिंदगी में ऐसी बातें कभी अपने जीवन में अनुभव भी नहीं की होंगी दोस्तों। सभी प्यार से बोलिए, आज के बाद। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। यू गिव इट टू मी हियर, so why this is not possible? Huh? Yeah, please do. I want to go back. आज के बाद हम अपनी लाइफ में बिजी नहीं हैं, लेकिन बी इजी हैं। दोस्तों हमारी लाइफ का, जीवन का पहला संदेश जो मैं आज आपको देना चाहूंगा कि लाइफ इज अ जर्नी एंड हैप्पीनेस इज नॉट डेस्टिनेशन। दोस्तों सवेरे से शाम तक हम लोग खुशी के पीछे भागते रहते हैं और उस दिन मैंने अपनी लाइफ में रियलाइज किया कि हमें खुशी को चेज नहीं करना है, हमें खुशी को अपने जीवन में हर पल क्रिएट करना है, हर पल अपने जीवन में हैप्पीनेस को क्रिएट करना है। और दोस्तों यही आज हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों आज दूसरा संदेश और मेरे जीवन की दूसरी कहानी जो मैं आज आप लोगों को देना चाहूंगा, वो दूसरा संदेश है 2018 की मेरे जीवन की वो कहानी। दोस्तों नवंबर का वो दिन था, दिसंबर का वो मास था और सैटरडे का वो दिन था दोस्तों। और सैटरडे के उस दिन शाम को करीब 9:30 बजे का टाइम दोस्तों हो चुका था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 9:30 बजे का टाइम हो चुका था और रात को 9:30 बजे दोस्तों मेरे घर जाने की तैयारी थी। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। कहां से कर रहे हैं? 9:30 बजे जब मेरा घर जाने का समय था, उसी समय मेरे ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक 22 साल का यंग लड़का, उसको मेरे ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाया गया, जो कि कंप्लीटली कोलैप्स था, पल्सलेस था, बीपीलेस था और प्रैक्टिकली उसकी ईसीजी फ्लैट लाइन थी।
और मुझे कहा गया कि डॉक्टर गुप्ता इसे ऑपरेट करना है। मैंने कहा इसमें कुछ बचा नहीं है, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? उन्होंने कहा गिव इट योर बेस्ट ट्राई। दोस्तों हमने उसे वेंटिलेटर पर लिया, उसे मसाज करते हुए उसको आर्टिफिशियल बेसिंग सिस्टम पर डाला और उसकी तीनों क्लॉग्ड आर्टरीज को करीब 1.5-2 घंटे की मेहनत के बाद मैंने उसे खोला दोस्तों, और उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। मन कह रहा था ये नहीं बचेगा, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ही माइट जस्ट मेक इट। दोस्तों नेक्स्ट डे जब मैं राउंड पर गया, उसका ब्लड प्रेशर एक दिन पहले 50-60 मिलीमीटर था, उस दिन वो कंप्लीटली कॉन्शियस था, प्रैक्टिकली रिकवर कर चुका था, उसका ईसीजी रिकवर हो चुका था एंड इसकी हीमोडायनेमिक्स भी स्टेबल थी और सब लोग बहुत खुश थे, मेरा मन भी बहुत खुश था दोस्तों। लेकिन वो दिन मेरे मन का सबसे परेशान करने वाला दिन था और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि उस दिन मेरे मन में ये संकल्प आ रहा था कि व्हाई दिस 22-year-old यंग बॉय हैड एन हार्ट अटैक, जिसको ना डायबिटीज है, ना हाइपरटेंशन है, ना स्मोकिंग है, ना फैमिली हिस्ट्री थी। दोस्तों मैं उसके परिवार वालों के पास गया, मैंने कहा मुझे इस लड़के से बात करनी है। वो 2 साल से मैरिड था। मैंने कहा इसकी वाइफ को बुलाइए, और उसके पेरेंट्स मुझे अलग लेकर गए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर गुप्ता आपको जो भी बात करनी है आप हमसे करिए, क्योंकि उसका वाइफ नहीं आएंगी। मैंने कहा क्यों नहीं आएंगी? वो मुझे अलग लेकर गए और उन्होंने कहा दे आर ऑन दी वर्ज ऑफ डाइवोर्स। दोस्तों मैं स्तब्ध रह गया, मैं हैरान था। मैंने कहा ऐसा क्यों? और मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उसकी वाइफ को मेरे बिहाफ पर रिक्वेस्ट करके फ़ोन लगाइए। उन्होंने रिलक्टेंटली फ़ोन किया और वो अपनी 4 महीने की बच्ची को लेकर दौड़ती हुई 2 घंटे बाद आईसीयू के अंदर आई और मैंने सबको बाहर करके उस यंग लड़के को एक्सट्यूबेट करके उनसे बात करना आरंभ किया। और सुनिए मेरी क्या बात हुई, आपके दिमाग के जाले दोस्तों साफ हो जाएंगे। मैंने उनसे पूछा व्हाट इज गोइंग ऑन रॉन्ग इन योर लाइफ, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ के अंदर? उस लड़के ने कहा सर वी अर्न अ 6 डिजिट सैलरी, हम 6 डिजिट सैलरी कमाते हैं। आई ड्राइव अ मर्सिडीज, हमारे पास 4 बेडरूम का प्लस अपार्टमेंट है। दुनिया में किसी भी प्रकार के सामान की कोई भी कमी हमको नहीं है, लेकिन पिछले 2 साल से हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी नहीं किया है। हम एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं, हम केवल सामान ही इकट्ठा करते रहे। हमारे पास धन दौलत वैभव सब कुछ है, एवरीथिंग दैट वी वांट इन आवर लाइफ, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारा इमोशनल कनेक्ट ही एक दूसरे के साथ नहीं है। दोस्तों देखिए अपनी लाइफ को। मैंने उनको कहा परफेक्ट, अगर तुम दोनों सेपरेट होना चाहते हो जाओ, मैं तुमको रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरे लिए 1 महीने बाद तुम सेपरेट होगे, केवल 2 काम तुम्हें करने हैं 1 महीने के लिए, करोगे? उन्होंने कहा सर करेंगे। और दोस्तों मैंने उन्हें पहला काम बोला कि आज के बाद रोज रात को आधा घंटा मोबाइल को बंद करके टेलीविजन को ऑफ करके साथ डाइनिंग टेबल पर परिवार के साथ खाना खाना आरंभ करो। एक दूसरे के साथ बैठो, एक दूसरे की बातों को सुनो, सामान को छोड़कर दिल के अंदर सुकून की बातें करो। मैं हमेशा बोलता हूं जितना सामान हमने इकट्ठा किया है, पूछो अपने आप से कि क्या उतना ही सुकून और शांति भी हमारे जीवन के अंदर है? और दोस्तों उन्होंने कहा हम करेंगे। दूसरी बात मैंने उस यंग लड़की को बोली कि देख तेरे हस्बैंड को मैं 2 दिन बाद डिस्चार्ज करूंगा, लेकिन एक काम तुझे करना पड़ेगा कि तेरे हस्बैंड को मैं तब अपनी ओपीडी में देखूंगा जब तू उसे हाथ पकड़ के मेरी ओपीडी में लेकर आएगी। केवल 4 विजिट्स तेरे को देनी है, उसके बाद तुम सेपरेट हो जाना है। उसने रिलक्टेंटली कहा सर मैं आऊंगी। और दोस्तों मैंने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। दोस्तों पहला हफ्ता आए, दूसरा हफ्ता आए, वो 2 हफ्ते 4 हफ्ते में बदले, वो 4 हफ्ते 4 महीने में बदल गए, और वो 4 महीने 4 साल में बदल गए। उनकी 4 महीने की बच्ची 4 साल की हो गई। वो आज भी मेरी ओपीडी में आते हैं। उन्होंने अपने डाइवोर्स पेपर्स को विड्रॉ कर लिया है एंड दे आर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ दोस्तों। और उस दिन मुझे अपनी लाइफ में रियलाइज हुआ दोस्तों कि आज हम सब लोग सवेरे से शाम भागते रहते हैं भौतिकता के पीछे, सामान इकट्ठा करते करते दोस्तों, लेकिन जीवन के अंदर केवल एक सीक्रेट है सक्सेसफुल और फिलिंग लाइफ का, जो आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, उन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा जो हमने आप जैसे ही लोगों के ऊपर किए। मैंने 150 लोगों को, यंग बच्चों को, हार्ट अटैक के मरीजों को इकट्ठा किया जिनको कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं था, और केवल उनके तनाव को मेजर किया, उनके जीवन में कितना होम वर्क और जनरल स्ट्रेस था। और उनका ब्लड सैंपल लेकर मैंने उनकी शरीर की उम्र नहीं, उनकी जेनेटिक यानी बायोलॉजिक एज को मेजर किया कि अंदर की बायोलॉजिक एज उन लोगों की दोस्तों कितनी है। जैसे हमारी एज 50 है, किसी की 60 है, उनकी
सेल्स की एज कितनी है उसको हमने मेजर किया। रिजल्ट्स क्या थे दोस्तों, देखिए आप हैरान हो जाएंगे। इन लोगों की, बच्चों की शारीरिक उम्र थी 18 से 35 वर्ष, लेकिन देखिए लाल ग्राफ के अंदर इन लोगों की जेनेटिक एज थी एक 60 से 95 साल के बुजुर्ग के बराबर दोस्तों। देयर जीन्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। मैं हैरान हो गया। जब हमने फर्दर एनालाइज किया तो मैंने देखा कि इन लोगों के जीवन में हाईएस्ट लेवल ऑफ साइको सोशल स्ट्रेस था, लैक ऑफ लव था और लैक ऑफ हैप्पीनेस था। मैंने कहा कोई बात नहीं, तनाव तो सबको होता है, उससे इनकी बॉडीज के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। जब हमने फर्दर एनालाइज किया, देखिए दोस्तों, जिन लोगों के जीवन के अंदर खुशी नहीं है, जिन लोगों के जीवन के अंदर पर्पस नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस है, केवल ईगो है, अहम है, मेटेरियलिस्टिक ट्रेजर्स के पीछे भाग रहे हैं दोस्तों, उन लोगों की टेलोमेरेज एंजाइम कम होती है और उन लोगों की जेनेटिक लेंथ, बायोलॉजिक एज बढ़ती चली जाती है दोस्तों। लेकिन वो लोग, जिन लोगों के जीवन के अंदर खुशी है, शुक्राना है, जीवन के अंदर पर्पस है, रिश्तों के अंदर प्यार है, उन लोगों की टेलोमेरेज एंजाइम बढ़ती है और उनकी जेनेटिक एज सिग्निफिकेंटली कम होती चली जाती है दोस्तों। आज अपनी लाइफ को एक एक व्यक्ति चेक करिए इस मुकाम के अंदर कि क्या आज हम लोग भी अपनी लाइफ एक पर्पस के साथ जी रहे हैं। क्या हमारे भी जीवन के अंदर संबंध, प्यार, खुशी और आनंद है दोस्तों। केवल चैरिटी करने से हमारे जीवन के अंदर हमको खुशी नहीं आएगी, लेकिन सेल्फलेस चैरिटी, वो चैरिटी जिसके अंदर दिखावा ना हो, वो दूसरों को देना दान, जिसके अंदर हमारे जीवन के अंदर खुशी और आनंद और दुआओं की प्राप्ति हो दोस्तों, वो हमारी जीन्स और हमारी लाइफ को हेल्दी रखती है। और यही संदेश दोस्तों मैं आपको देना चाहता हूं कि हमारा डीएनए मेकअप फिक्स नहीं है, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे संस्कार, हमारे संकल्प, हमारी दृष्टि और वृत्ति ही हमारी जीन्स की हेल्थ को दोस्तों डिटरमिन करती है। इसलिए आज अपने परिवार, अपने जीवन में एक दूसरे के साथ समय बिताना आरंभ करिए दोस्तों। आज हाई टेक्नोलॉजी, हाई टेक लाइफ जो हमने बना ली है दोस्तों, उस हाई टेक के साथ साथ अपने जीवन में हाई टच और हाई कंपैशन को भी दोस्तों वापस लेकर आइए। आज करुणा की हमारे जीवन के अंदर आवश्यक है। इसलिए आज दूसरा मैसेज जो आज सबको मैं देना चाहता हूं दोस्तों, देयर इज ओनली एंड ओनली वन सीक्रेट टू फुलफिलिंग एन हेल्दी लाइफ। वो आपकी धन, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी पोजीशन, आपकी पावर, आपकी मनी, आपके लाइफ के इंसिडेंट्स दोस्तों नहीं है। द ओनली सिंगल फैक्टर जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट स्टडी, हार्वर्ड ग्रांट एंड ब्लूएक स्टडी और हैप्पीनेस स्टडी में दिखाया गया है, वो है आपके अच्छे संबंध, आपके गुड रिलेशंस इन योर फैमिली, विद योर चिल्ड्रन, विद योर ओन सेल्फ एंड इन योर लाइफ दोस्तों। मेरे जीवन के अंदर पिछले 50 वर्षों से हम अपने घर के अंदर केवल एक असूल रखते हैं कि रात को जब मैं घर पे जाता हूं तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होता, अपने मदर एंड फादर के लिए उनका बच्चा होता हूं, अपनी सिस्टर के लिए मैं ब्रदर होता हूं। और हमने पिछले 40 वर्षों से एक भी डिनर साथ रात को मिस नहीं किया है दोस्तों। हम टेबल पर बैठकर साथ भोजन खाते हैं, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलती, टेलीविजन ऑफ होता है, मोबाइल फोन ऑफ होता है। हम आज भी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, लड़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों। जीवन में अगर खुश रहना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं दोस्तों, तो अपने संबंधों को प्यार से परिपूर्ण और श्रेष्ठ दोस्तों। मेरे जीवन की तीसरी कहानी और मेरे जीवन का तीसरा संदेश जो आज मैं सबको देना चाहूंगा, जीवन में आप जो भी चाहते हैं दोस्तों, दैट्स ऑलरेडी ऑन इट्स वे। अगर आप धन चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, मान चाहते हैं, खुशी चाहते हैं दोस्तों, वो केवल और केवल आपसे संकल्प मात्र की दूरी पर ही दोस्तों है। 2001 जुलाई का महीना, 9 जुलाई दोस्तों मैं अमेरिका से वापस आया था और कार्डियोलॉजी की पढ़ाई के लिए मैं तैयारी कर रहा था। हमारे भारतवर्ष में उस वक्त केवल 5 सीटें हमारे इंस्टीट्यूट में कार्डियोलॉजी की होती थी दोस्तों। और मेरे टीचर्स, मेरे सीनियर्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट देकर उस एग्जाम को क्लियर करते थे और मात्र मेरे पास केवल 5 महीने बचे थे। अब मैं उस एग्जाम के लिए पढ़ने लगा। मेरे को लगता था कि बहुत मुश्किल है और मैं मदर के पास गया। मैंने कहा मैं केवल अमेरिका छोड़कर आपके साथ रहने के लिए आया हूं और कार्डियोलॉजी करना चाहता हूं, इसलिए मैं केवल एक एग्जाम दूंगा। अगर मेरा एग्जाम हो गया तो परफेक्ट है, नहीं तो मैं एमडी मेडिसिन प्रैक्टिस करूंगा, फिजिशियन की तरह प्रैक्टिस करूंगा। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे एक बात बोली कि बेटा सीटें कितनी हैं? मैंने कहा 5। उन्होंने कहा तुम्हें कितनी चाहिए? मैंने कहा मुझे केवल एक चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटा एक पर फोकस करो। और मैं अपने कमरे में गया, मैंने अपने
सामने लिख लिया, दिस वन सीट इज फॉर मी। और दोस्तों 19 जुलाई 2001 से मैंने अपनी पढ़ाई को आरंभ किया। उस वक्त मैं अपनी रेजिडेंसी भी करता था, एम्स में काम भी करता था और उसके साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई करता था। 9 फरवरी 2002, 5 महीने बाद मेरा एग्जाम था, सैटरडे का दिन था। 4000 से ऊपर क्वालिफाइड फिजिशियंस ऑल ओवर इंडिया से देने आए हुए थे दोस्तों। 3 घंटे का वो एग्जाम 9:30 से 12:30 मैं देकर बाहर निकला। और जब मैं बाहर निकला, एक भी व्यक्ति ने मुझसे मेरे साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस दोस्तों नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। उन्होंने केवल एक बात मुझे बोली कि मोहित, तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तू घर जा, शाम को 6:30 बजे हम तुझे 100 क्वेश्चंस का पेपर विद आंसर्स भिजवाएंगे, सो दैट यू कैन गिव योर एग्जाम बेटर नेक्स्ट ईयर। मैं डिसहार्टन था दोस्तों। आई गॉट अ हेयर कट, मैं घर गया, मैंने अपनी किताबों को साइड किया और मैंने कहा मेरे को एक अटेम्प्ट देना था, आई कैन नॉट डू बेटर देन दिस, आई हैव गिवन माई अटेम्प्ट। मैंने 15 दिन रिजल्ट्स की वेट की दोस्तों। 15-20 दिन बाद जब रिजल्ट आया मार्च में, मेरा कंट्री के अंदर दोस्तों फर्स्ट रैंक था। मेरा परसेंटाइल था 95% और सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रैंक था 78, 77, 76 एंड 70%। और दोस्तों लोग कहते थे ये जादू है, मैं कहता था ये जादू नहीं, दिस इज द पावर ऑफ माइंड। एंड आई विल टेल यू व्हाई दोस्तों, व्हाट इज द मंत्रा, दैट व्हेन यू ग्लू योर इंटेंशन विद इमेजिनेशन एंड पुट अ डू नॉट डिस्टर्ब साइन, नो पावर ऑन अर्थ कैन टेक अवे योर सक्सेस फ्रॉम यू। जब आप अपने संकल्प और अपने लक्ष्य को दोस्तों एक दूसरे के साथ चिपका देते हैं और बाहर ताला लगा देते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब, दुनिया की कोई भी शक्ति आपसे आपकी सफलता को नहीं ले जा सकती है दोस्तों। इसीलिए लोग इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन मैं इसको लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन बोलता हूं दोस्तों। इसके पीछे पावरफुल साइंस काम करती है और आज मैं आपको उसी साइंस के बारे में दोस्तों बताना चाहूंगा। उस साइंस को हम लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आप कहते हैं डॉक्टर मोहित के लिए तो हो गया, मेरे लिए पता नहीं होगा या नहीं होगा। दोस्तों आज हम अपने संकल्पों के द्वारा अपने ब्रेन और अपने फ्यूचर को दोस्तों प्रोग्राम कर सकते हैं। दिस इज वेयर आवर साइंस इज गोइंग दोस्तों। आज अगर एक बात को, एक संकल्प को हम बार बार बोलते हैं तो दोस्तों मात्र 21 डेज से 254 डेज के अंदर हम अपने ब्रेन के अंदर एक नई हैबिट, एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं और उस चीज को फास्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट दोस्तों करते हैं। दिस इज हाउ आवर ब्रेन इज वर्किंग टुडे। आज हमको अगर सफलता नहीं मिलती है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण सिंपल ये है दोस्तों, आपके अपने ही संकल्प और आपके अपने ही शब्द दोस्तों। आज हम किन प्रकार के शब्दों का यूज करते हैं? मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, सारे चैलेंजेस मेरे ही आगे आते हैं, सारी परेशानियां मेरे ही आगे आती हैं, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, मुझे नहीं लगता आज ये पढ़ भी पाएंगे, पास भी हो पाएंगे, मेरी तबीयत खराब रहती है, मुझे बहुत वीकनेस सी लगती है, हमेशा कमजोरी सी लगती है। और दोस्तों आपका अंदर बैठा हुआ ब्रेन केवल और केवल एक काम करता है आपके संकल्प के ऊपर। जो भी संकल्प आप जनरेट करते हैं वो कहता है तथास्तु, तथास्तु और तथास्तु। दिस इज हाउ साइंस इज वर्किंग टुडे। डॉक्टर एरिक कैंडल को नोबेल प्राइज 2000 में इसी के लिए मिला था। नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर दे वायर टुगेदर। जिस चीज को आप बार बार बोलते जाएंगे वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगेगी। अगर आप 21 दिन बोलेंगे मेरी तबीयत खराब है, वो बीमारी लाकर आपके शरीर में रख देगा दोस्तों। इसीलिए इफ यू वांट एनीथिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू क्रिएट दैट थिंग फर्स्ट इन योर माइंड। जीवन में जो भी कुछ आप चाहते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्रिएट इट इन योर माइंड, रीडिजाइन योर थॉट्स एंड अवॉइड कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग और कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग को दोस्तों समाप्त करिए। आज हमारा मन, हमारा ब्रेन एक प्रोजेक्टर की तरह काम करता है दोस्तों। एक प्रोजेक्टर के अंदर आप जो भी कुछ डालेंगे उस चीज को वो प्रोसेस करके बाहर निकाल देगा। इट इज वैल्यू न्यूट्रल, खुशी हो या नेगेटिविटी हो दोस्तों। इसीलिए अपने जीवन में संकल्प पॉजिटिव रखिए। नोट करिएगा दोस्तों, थॉट्स में भी, विचारों में भी कभी अपने आप को नेगेटिव मत बोलिए। असूल बनाइए अपने लिए। विचारों में भी कभी अपने लिए नेगेटिव मत बोलिए दोस्तों। आपका एक एक विचार आपके जीवन, आपके भविष्य का दोस्तों निर्माण कर रहा है। इसलिए क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स एंड पीसफुल थॉट्स इन योर लाइफ। दोस्तों आज चौथा मैसेज और
और चौथी कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, दैट चेंज इज नॉट एन इवेंट, चेंज इज अ प्रोसेस। स्मॉल चेंजेस क्रिएट मिरेकल्स इन आवर लाइफ। दोस्तों, अगर जीवन में हम लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं तो परिवर्तन एक दिन का इवेंट नहीं है, परिवर्तन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हमें अपनी लाइफ में क्रिएट करना पड़ेगा, अपने आप को प्रोसेस में डालना पड़ेगा। जब मैं 2001 में अमेरिका से आया था, उस समय मेरा वेट 93 केजीज होता था। दोस्तों, उस समय 93 केजीज होता था। मेरे को डायबिटीज थी, हाइपरटेंशन था, थायराइड था, फैटी लिवर था। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मेरी ये पिक्चर्स 2001 की अमेरिका डिज्नीलैंड के सामने मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा हुआ हूं, और इस प्रकार की मेरी पर्सनालिटी दोस्तों उस समय होती थी। जब मैं यहाँ पर आया तो 10 जुलाई के आसपास मेरे अंकल घर पर आए थे और उन्होंने बड़े प्यार से बोला, बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा, अंकल कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। और उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए इनोसेंटली मुझे बोला कि अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए। और दोस्तों, उनकी बात मेरे मन और मेरे दिल को एकदम चीरती हुई गई। और 19 जुलाई जिस दिन मैंने अपनी पढ़ाई आरंभ की, उस दिन से मैंने अपने डाइट और अपनी एक्सरसाइज पैटर्न्स को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। मैंने कभी भी डाइटिशियन को कंसल्ट नहीं किया, कभी भी मैं जिम में नहीं गया, लेकिन आज भी मैं सब खाता हूँ, सात्विक डाइट खाता हूँ, लेकिन क्वांटिटी को क्वालिटी में चेंज किया और डेली एक्सरसाइज, योगा एंड व्यायाम करना आरंभ किया। दोस्तों, जिस दिन मेरा एग्जाम था 9 फरवरी 2002, उस दिन तक मैंने 23 किलो वजन 5 महीने के अंदर लूज किया एंड आई रिगेन्ड अ होल न्यू पर्सनालिटी। दोस्तों, मेरी डायबिटीज गायब हुई, मेरी हाइपरटेंशन और थायराइड गायब हुआ, एवरीथिंग डिसअपीयर्ड। दोस्तों, अचीवमेंट ये नहीं था, अचीवमेंट ये है दोस्तों कि आज के दिन तक 28 दिसंबर 2024 तक दोस्तों, पिछले 24 साल से मैं यही शेड्यूल्स अपनी लाइफ में डेली मेंटेन दोस्तों करता हूं। दोस्तों, अगर आज हम लोग अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आज आपको अपने जीवन को प्रोसेस में डालना पड़ेगा। कैपेसिटी को बिल्ड नहीं करना है दोस्तों, कंसिस्टेंसी को बिलीव करना है। कोई भी परिवर्तन का आधार, जीवन में ध्यान रखिएगा दोस्तों, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े परिवर्तन का आधार केवल और केवल छोटी छोटी बातों को रिपीट और कंसिस्टेंटली करना है, और वही कंसिस्टेंसी हमारे जीवन में दोस्तों परिवर्तन लेकर आती है। दोस्तों, इसलिए कंसिस्टेंसी इज द की एंड चेंज इज नॉट एन इवेंट, चेंज इज अ प्रोसेस। दोस्तों, आज 5वां संदेश दोस्तों मैं आप सबको देना चाहूंगा, और ये बहुत सुंदर बात दोस्तों, आज हम सबको इस चीज का फैसला भी करना पड़ेगा, इस चीज को रखना भी पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आज हमारे जीवन में हम किस प्रकार से जीते हैं उसका इन्फ्लुएंस लोगों की ओपिनियंस, लोगों की बातें और लोगों की भावनाओं का भी आता है दोस्तों। और आज मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि यदि आज से 5 साल पहले, आज से 5 दिन पहले या आज से 5 मिनट पहले भी कोई व्यक्ति हमको बुरा बोलता है, उसकी बातों को आज हम अपने मन में दोस्तों सजा कर रख लेते हैं। और अगर किसी व्यक्ति ने आज हमारे लिए करीब 5 महीने पहले या 5 साल पहले हमको बुरा बोला हो, और वो 5 महीने या 5 साल बाद यदि हमारे सामने आज आ जाता है, तो हमारे मन में किस प्रकार की भावनाएं उस व्यक्ति के लिए आती हैं दोस्तों, एक एक व्यक्ति अपने आप से पूछ कर देखिए। उस व्यक्ति की उस बात को ध्यान रखते हुए हमारे मन में नेगेटिविटी आती है, हमारे मन में उसके प्रति कहीं ना कहीं क्रोध और इरिटेशन की भावना आती है। दोस्तों, एक बारी की बात है कि 2 महात्मा जा रहे थे और नदी पार करने का टाइम आया तो उन्हें दिखा कि एक छोटी सी बच्ची वहां पर फंसी हुई है। तो उनमें से एक भिक्षु को दया आई और उसने उसे सर पर उठाकर, कंधे पर उठाकर नदी के पार रख दिया। दूसरे भिक्षु को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि तुमने ये ठीक नहीं किया। उसने कहा, क्या ठीक नहीं किया? उसने कहा, तुमने उसको अपने मन पर उठाया है। और दोस्तों, ऐसा कहकर वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपनी तपस्या को भी भंग किया। उसका मन बढ़ता चला गया क्रोध से दोस्तों, उसकी सीमा अंदर मन जो है विचलित होता चला गया। जब 5 दिन बीत गए और उसका दूसरा मित्र बिल्कुल रिलैक्स होकर तपस्या कर रहा था, वो उसके पास गया और उसने कहा, मित्र तुमने बहुत गलत काम किया है। उसने कहा, मैंने क्या गलत काम किया? उसने कहा, आज से 5 दिन पहले तुमने उस कन्या को अपने सर पर उठाकर, कंधे पर उठाकर नदी के पार रखा था। तो उसका मित्र बोला, मित्र मैंने तो उससे आज से 5 दिन पहले केवल 5 मिनट के लिए उठाया था, तुम तो पिछले 5 दिनों से उसे उठाकर घूम रहे हो। दोस्तों, आज हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। आज आप सब लोग पूछिए, केवल एक बात पूछिए अपने आप से कि क्या आज मेरे मन में भी इस प्रकार की भावनाएं मन में तो नहीं रहती हैं? अगर मैं आप सब लोगों को अनुरोध करूंगा कि मेरे कहने से केवल 4 दिन
एक्सरसाइज करेंगे, तो सभी लोग करेंगे, यस और नो बताइए। करेंगे तो हाथ उठाइए। इनका वीडियो निकालिए ताकि बाद में मुकरे ना भैया, वीडियो निकाल लीजिए बिल्कुल, है ना। सिंपल एक्सरसाइज दोस्तों मैं आज आप सबको बताऊंगा, और आप सब लोगों को केवल 4 दिन के लिए वो एक्सरसाइज करनी है। करेंगे सभी लोग, यस और नो? सिंपल एक्सरसाइज है दोस्तों। जब आप यहां से वापस जाएंगे 4 दिनों के लिए केवल एक काम आप लोगों को करना है कि जब आप रोज घर की सफाई करेंगे, बाथरूम की सफाई करेंगे, किचन की सफाई करेंगे, बेडरूम की सफाई करेंगे, सब प्रकार का कूड़ा दोस्तों इकट्ठा होगा, उस सारे कूड़े को इकट्ठा करके केवल 4 दिनों के लिए आपको अपने ड्राइंग रूम में डेकोरेट करके रखना है। रेडी दोस्तों? यस। अब एक भी हाथ नहीं उठ रहा भैया, अभी आपने 5 सेकंड पहले उठाया था जितनी तेजी से, हाँ 1 सेकंड में आपने दल बदल लिया। अच्छा, डिस्काउंट फॉर यू, 2 दिन करेंगे या नहीं करेंगे? 2 दिन भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अच्छा क्यों नहीं करेंगे बताइए मुझे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बदबू आएगी, घर का डेकोर खराब होगा, इंफेक्शन फैलेगा, इसलिए घर की सफाई रोज होनी चाहिए। कभी कभी, जोर से बताइए, आवाज ही नहीं आती। घर की सफाई रोज होनी चाहिए कभी कभी। जब घर की सफाई रोज होनी चाहिए तो मन की सफाई हम 20-20 साल क्यों नहीं करते हैं दोस्तों? अपने आप से एक एक व्यक्ति आज पूछ कर देखो दोस्तों। गुरुओं की, महात्माओं की लेक्चर्स को, यूट्यूब को लोग कहते हैं हम सुनते रहते हैं दोस्तों। आप पूरे दिन सुनते रहो। आज देखो दोस्तों, आज हमारा मन नहीं, आज हमारा मन कूड़ेदान बन गया है। एक दिन एक व्यक्ति बोलता है बुरी बात, उसकी बात को मन में रखते हैं, 2 दिन दूसरा व्यक्ति, 365 दिन 365 लोग, एक दिन में 10 व्यक्ति 3650, और 10 साल तक दोस्तों 36,000 लोग। आज हमारा मन एक नेगेटिव कूड़ेदान बन चुका है। आज अपने मन के अंदर क्रोध, अपने मन के अंदर इरिटेशन की भावनाएं, लोगों के लिए घृणा और ईर्ष्या, लोगों के लिए कंपटीशन और क्रिटिसिज्म, और दोस्तों लोगों के लिए कंप्लेन करना बार बार और एक्सपेक्टेशन आना, केवल इन 8 भावनाओं से दोस्तों एक भी व्यक्ति आज मुक्त नहीं है। देखिए अपने मन को दोस्तों, इस समय देखिए, आप सुनिए दोस्तों गुरुओं को, महात्माओं को, सदगुरुओं को और बहनों को दोस्तों। आप दिन भर योग लगाइए, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे जाइए दोस्तों। लेकिन मेरा मंत्र है कि जो मन क्रोधी है दोस्तों, और जिस हृदय के अंदर दूसरों के लिए घृणा है, वो दोस्तों चाहे 8-8 घंटे योग लगाए, ना कभी वो खुद खुश रह सकता है, ना कभी दूसरे को खुशी दे सकता है दोस्तों। यथार्थ अध्यात्म का अर्थ ही है अपने मन की सफाई करना दोस्तों। आज 5वां मंत्र मैं आप सबको देना चाहता हूं दोस्तों कि अपने मन को रोज साफ करो। जैसे खिचड़ी जब कुकर में पकती है तो हमारे स्वास्थ्य को ठीक करती है दोस्तों, लेकिन जब वो खिचड़ी हमारे दिमाग में पकती है तो हमारे माइंड, हमारी लाइफ को खराब कर देती है दोस्तों। इसलिए आज अपने मन के अंदर दूसरों के लिए प्यार की भावना, अंडरस्टैंडिंग की भावना दोस्तों, दूसरों के लिए कंपैशन और एक्सेप्टेंस लाना, एप्रिसिएशन लाना, दूसरों के लिए स्नेह लाना दोस्तों, ये हमारे जीवन का एसेंस है। आज जब आप यहां से जाओगे, सेलिब्रेट करोगे दोस्तों, तो सबसे पहली सेलिब्रेशन ये करना कि अपना मोबाइल उठाना, और जिस व्यक्ति से आपकी सालों सालों से बात नहीं होती हो, जिसने आपके लिए बुरा किया हो या आपने किसी के लिए बुरा किया हो दोस्तों, फोन उठाकर या तो उसे क्षमा करना या उसे क्षमा मांगना दोस्तों। क्योंकि जिंदगी का असूल ही है कि जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया दोस्तों। अपने मन, अपने जीवन को दोस्तों हमेशा हल्का बनाओ, हल्का लाइट बनाओ दोस्तों। आज आखिरी संदेश जो मैं आज आप सबको देना चाहूंगा कि रोज अपने जीवन में अपने आप को चार्ज करने के लिए समय निकालो। ये बीता हुआ पल दोस्तों वापस नहीं आने वाला, हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाने वाले दोस्तों। एक व्यक्ति था जो बहुत करोड़पति था, बहुत धन था, और उसके बच्चे उसके पास पहुंचे और कहा कि पिताजी हमको कुछ उपदेश दीजिए, हमको कुछ अंतिम समय में शिक्षा दीजिए, बस 5 मिनट्स में, लेकिन वो शिक्षा हमारे जीवन में हमको परिवर्तन करेगी। तो उन्होंने कहा बेटा मेरे मरने से पहले तुम केवल एक मेरी इच्छा को पूरी करना कि जब मैं जाऊं, जब मैं समाप्त हूं, तो केवल माँ की दी हुई पुरानी जुराब पहनाकर मेरा संस्कार करना। उन्होंने कहा हम करेंगे। और दोस्तों जब वापस आओ तो मेरे यहाँ पे पीछे अलमारी में एक संदेश लिखा है, उसको पढ़ लेना। उन्होंने कहा हम जरूर करेंगे। और गए, जब उसके पिता की डेथ हुई, उन्होंने ये इच्छा जाहिर की तो संतों ने मना कर दिया कि पुरानी जुराब पहनाकर हम तुम्हारा पिता का संस्कार नहीं कर सकते। वो दुखी होकर वापस आए, और जब उन्होंने अलमारी में पत्र खोला तो उसमें लिखा था कि देखा मेरे प्यारे बच्चों,
जब मैं इस दुनिया से गया तो मेरी करोड़ों की दौलत, मेरी धन, मेरी गाड़ियां, इन सब की बात दूर छोड़ दो, लेकिन माँ की दी हुई पुरानी जुराबी मैं अपने साथ नहीं ले जा पाया। इसलिए अपने साथ अपने हमेशा श्रेष्ठ कर्म और संस्कार ही लेकर जाना। दोस्तों, आज 1440 मिनट हमको रोज मिलते हैं। उन 1440 मिनट में से रोज अपने लिए मात्र 20 मिनट निकालिए। वो 20 मिनट अपने मन को सुंदर बनाने के लिए, अपने मन को चार्ज करने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको अंत में यही कहना चाहूंगा कि 2005 में जब मेरे ब्रेन की सर्जरी हुई और ब्रेन कंप्लीटली जब निकाला, राइट साइड का पोर्शन निकाला गया, 6 महीने बाद मेरे ब्रेन के अंदर एक और लेजन आ गया, जो कि दोस्तों मेरे लोअर ब्रेन में था। और उस समय 3 जनवरी 2006 से मैंने योग का प्रयोग अपने ऊपर करना आरंभ किया। रोज 3 बजे उठकर मेडिटेशन करता था, अपने आप को हील करने की कोशिश करता था। लेकिन दोस्तों, 1 साल तक उसका प्रयोग करने के बाद जब लोग मुझे कहते थे इससे नहीं होगा, मेडिसिन्स को मेडिटेशन से कॉम्प्लीमेंट करते हुए मैंने अपने आप को कंप्लीटली दोस्तों हील किया। आज यही संदेश मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों, कि जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हो, उसी प्रकार अपने मन को भी रोज चार्ज करने के लिए समय निकालो दोस्तों। मैं नहीं जानता कि हम लोग दोबारा कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे दोस्तों, लेकिन आज का ये दिन आपको हमेशा ध्यान आएगा दोस्तों। इसलिए ध्यान आएगा कि एक व्यक्ति था जिसने आपके अंदर ही खोए हुए महात्मा को दोस्तों जगाया था। समय भागता रहता है दोस्तों, हम भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं दोस्तों, लेकिन ये पल, ये जीवन आपको हमेशा ध्यान आएगा कि वो पल जब हमको परिवर्तन का एक ऑप्शन मिला था और हम अपने जीवन को बदल सकते थे। आज वो अवसर दोस्तों आपके पास है। टुडे इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आज का ये दिन आपके बचे हुए जीवन का दोस्तों पहला दिन होगा। आप जैसे ही लोग एक महात्मा के पास गए, उन्होंने बोला कि हमको टाइम नहीं मिलता है, हम कब याद करें भगवान को और कब परिवर्तन करें। तो उन्होंने कहा केवल मरने से 1 दिन पहले करना, उसी से काम हो जाएगा। तो उन्होंने खुशी खुशी कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। पर जाने लगे तो एक विद्वान ने पूछा महात्मा जी से कि हमें ये तो मालूम ही नहीं कि हम कब मरेंगे। फिर उन्होंने कहा आज करो, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है दोस्तों। परिवर्तन का समय आज है। इन्हीं दुआओं के साथ, इसी शुभ आशीष के साथ दोस्तों, मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि आपके हर पल जीवन के अंदर सुकून और शांति हो। और इन्हीं लाइनों के साथ मैं अपने इस वक्तव्य को अंत करूँगा दोस्तों, कि ज़िंदगी के अंदर हर जज्बात को ज़िंदगी में ज़ुबां नहीं मिलती, हर जज्बात को ज़िंदगी में ज़ुबां नहीं मिलती, हर आरज़ू को ज़िंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर आरज़ू को ज़िंदगी में दुआ नहीं मिलती। मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, क्योंकि आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। तो दोस्तों, सदा मुस्कुराते रहिए। आपकी भावनाएं, आपके शब्द और आपके कर्म इतने सुखदायी हों दोस्तों, कि कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए तो आपके उस प्यार और शांति के सागर में वो समा जाए और वो परिवर्तन हो जाए दोस्तों। भौतिकता की इस रेस में अपनी वास्तविकता को कभी मत खोने दीजिए दोस्तों। मेरे जीवन का हमेशा असूल रहा है कि ऐसी कुर्सी पे बैठने की मेरी चाह नहीं जिस पे मेरे पांव जमीन पर दोस्तों नहीं लगते हो। शुक्रिया और ओम शांति। बहुत ही प्लीज। हेलो। जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होते हैं, यादों में कुछ लोग खास होते हैं। यूँ तो मोहित साहब दूर होंगे नज़रों से, पर उनका एहसास हरदम दिल के पास होगा। थैंक यू मोहित साहब। प्लीज गिव अ बिग loud round of applause. Can I request the Governor and the Sandeep Saraf, District Secretary, to come up on stage and honor our guest.